Good morning, dear children. Today we start here exercise 11C of geometry. This chapter is class 6 maths. And in this exercise, dear children, here some figures are given here. 1, 2, 3, 4 figures. And the first question is, name the pair of perpendicular and parallel line in the following diagrams. So these are, we draw here 4 diagrams. And parallel line, in the last video or last chapter, I told you what is a parallel line, what is a perpendicular line, what is intersecting line. Today once again I will tell you here parallel line. A parallel line which do not intersect to each other means ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. जैसे ये लाइन, दिस लाइन इज अ पैरेलल लाइन, मींस जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस इतना, ये इधर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए. मींस दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइन. फॉर एग्जांपल लेडर, सीढ़ी कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, मींस वो दोनों एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल होती है. इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को कट करे, जैसे चाहे ये भी है और ये भी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है. थर्ड है परपेंडिकुलर. पैरेलल का साइन ये है, सपोज ए बी पैरेलल सी बी, दिस टाइप, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल. नाउ ए बी पैरेलल सी डी means this is the sign or this sign is the parallel. Okay, AB parallel CD. Now the sign of perpendicular is opposite, just like this type. This is a perpendicular sign. ये जो है perpendicular का sign है. इस perpendicular के जो sign में बिल्कुल जो perpendicular line होती है उसमें आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए बोथ साइड. मींस इस साइड भी इस साइड भी, तभी वो परपेंडिकुलर लाइन होगी. अगर आप बोले कि क्या ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, नो, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा. परपेंडिकुलर लाइन मींस शुड बी 90 डिग्री, दिस टाइप. ओके, सो डियर चिल्ड्रन, नाउ वी गो टू द एक्सरसाइज. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन is, this is the first diagram A B C D. Now here question is name the pair of perpendicular and parallel line in the following diagram. So first we write here parallel. So AB and DC. AB is parallel DC and AD is parallel BC. Okay, so we write here AB parallel DC. means आप देखिए ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है. मींस ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है. सो AB पैरेलल DC और CD एंड AD पैरेलल BC. ओके, नाउ द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. सो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. सो डियर चिल्ड्रन, हाउ मेनी राइट एंगल? 4 राइट एंगल्स, 1 2 4 and 5. So means 4 pair of perpendicular. So DA perpendicular AB, DA, this line is perpendicular to AB, and AD perpendicular DC, and CB perpendicular DC perpendicular CB, and BA perpendicular AD. Means how many lines? 4 lines, 4 pair of perpendicular lines. Here we write here AD perpendicular AB, AD perpendicular DC, and DC perpendicular CB or BC, and CB perpendicular AB or BA. आप दोनों साइड से रीड कर सकते हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. हियर this is the figure, this is the second figure, PQRS.
So look at here, this line is a parallel line. Sorry, this line is a parallel line. Now PQ and SR is a parallel. Okay, this two line, but this line is SP and RQ is not parallel. क्यों? क्योंकि ये लाइन तो सीधी स्ट्रेट जा रही है, बट ये लाइन यहाँ से थोड़ी इधर मूव कर रही है। ये अभी यहाँ तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बट ये कहीं ऊपर जाके, क्योंकि ये सीधी ऐसे जाएगी ऐसे, और ये लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो ये लाइन पैरेलल लाइन नहीं होगी। ओके, नाउ तो ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन PQ and SR. SR is parallel PQ. Okay. Now perpendicular line 190 degree angle, second 90 degree angle. So SP perpendicular PQ, SP perpendicular PQ, and PS perpendicular SR. PS perpendicular SR. Okay. Now here. Now this is the fifth number figure. Now parallel line ST parallel VQ and SP parallel QR, PQ parallel SR. Okay, so we write here ST parallel VQ and SR parallel PQ and SP parallel QR. ओके, मींस ये लाइन और ये लाइन पर पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन पैरेलल है। ओके, सो क्यों अब आप बोलेंगे कि ये भी मूव इधर कर रहा है, तो ये भी लाइन को मूव कर रही है। ये दिस लाइन एंड दिस लाइन इज नॉट पैरेलल, SP and VQ is not parallel. Okay, but SP and QR is a parallel line. ऐसे ये दोनों लाइनें ये ऐसे भी मूव कर रही थी, इनका डिस्टेंस एज इट इज मींस जो यहाँ है वही यहाँ पे है, ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। ओके, नाउ परपेंडिकुलर लाइन, लुक एट हियर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल एंड ये 90 डिग्री एंगल। सो वी राइट हियर ST perpendicular PQ, ST perpendicular SR, QV, where is QV perpendicular SR is, क्योंकि हमने SB ने लिखा है इसलिए क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन S एंड R है, ये पॉइंट है जो यहाँ से ड्रॉ किया गया है एक लाइन, तो इस पॉइंट का नेम V है, बट लाइन से नेम, इस लाइन का नेम क्या है? SR। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, पैरेलल लाइन, पैरेलल। So look at here, this line and this line is a parallel, this line and this line is a parallel, and this line and this line is a parallel line. Okay, so now we write here the name BC parallel EF, AB parallel DF, and ED parallel AC. Okay, so we write here this is the sign of parallel line. Now dear children, question number 7, tell whether each statement in always, sometime or never true. So यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उन 3 स्टेटमेंट के आपको आंसर देने हैं, किसमें देने हैं? ऑलवेज, समटाइम एंड नेवर ट्रू, मींस ये कभी नहीं। तो ऑलवेज मींस फर्स्ट लाइन इज intersecting line, lines are parallel, जो intersecting line होती है वो बोल रहा है कि parallel होती है, तो ये never, कभी नहीं। Now the first question is intersecting lines are parallel line, तो जो intersecting लाइनें होती हैं वो parallel कैसे हो सकती है? जैसे ये एक intersecting लाइन हो गई, एक ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, आप कैसे भी लाइन खींचेंगे तो वो एक दूसरे के अपोजिट में है, पैरेलल कैसे हो सकती है? ये लाइन और ये भी ऐसी मूव करे, ये फिर इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी।
ये पैरेलल होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी, इंटरसेक्टिंग होगी तो पैरेलल लाइन नहीं होगी। मींस इसमें ये पूछा आपको आंसर देना है ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा नेवर, मींस कभी नहीं हो सकता। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल, मींस ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नेवर। सेकंड क्वेश्चन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसका आंसर हो जाएगा सम टाइम। कैसे सम टाइम? जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो कुछ जगह पे परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है, जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, बट ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये यहाँ पे एक जो कॉमन पॉइंट पे मिले दो लाइनों का जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट, उसी को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे ये लाइन यहाँ पे मिल रही है और ये लाइन भी यहीं पे कट कर रही है, ओके, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। तो अब ये बताइए इसमें ये लाइनें परपेंडिकुलर कहाँ है? परपेंडिकुलर मींस बोथ साइड, इस साइड भी और इस साइड भी 90 डिग्री के एंगल होना चाहिए, बट इसमें देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है। तो कुछ जगह पे ऐसी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइन, कुछ ऐसी जगह होती है कि जहां पे वो लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइनों को हम परपेंडिकुलर लाइन कह सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा सम टाइम। इसमें बोला है कि ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर ट्रू में आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सम टाइम। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यस, ऑलवेज, इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज। जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी, अब ये लाइन है, ये तो परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये यहां से यहां तक है और ये हमारी लाइन यहां से यहां है, ये कहीं पे मिल ही नहीं रही है, कट ही नहीं कर रही, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो ये परपेंडिकुलर लाइन तो नहीं। बट यदि कहीं पे भी जो लाइन ये कट कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। परपेंडिकुलर तो तभी होगा जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, now the dear children, question number third is, if a line L is parallel to line N, suppose this is a line L and this is line N. According to the question, line L is parallel line N. Okay, so this is a parallel line, this is a line L and this is line N. So line L is parallel line N. Here we write here L parallel line N. Okay, now and line M is parallel to line M, and one line is more here, line N, means line M is parallel line N. So we write here M parallel line N. Okay, so according to the question, L parallel line N parallel line N. So what you can say about line L and N? Means line L और M के बारे में आप क्या कहेंगे? तो जैसे according to the question कि line L is parallel line M is parallel line N, so line L is also parallel line L parallel line N. ये भी लाइनें दोनों एक दूसरे की पैरेलल होंगी, क्यों? क्योंकि जब ये पैरेलल इसका है और ये इसका पैरेलल है, तो जब ये इसका पैरेलल है तो मींस दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं, और इसका पैरेलल ये है तो ये भी दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं, तो फिर ये दोनों तो पैरेलल होना ही है। सो लाइन L इज पैरेलल लाइन N. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, if the line L is not parallel line, just opposite of question third. So now look at here, question number 4 is
कि if a line L, this is suppose this is a line L, okay, line L is not parallel to M, line L जो है वो M के पैरेलल नहीं, ओके। अब ये एक ऐसी लाइन है तो हम एक लाइन ऐसे खींच ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज ए लाइन M। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल तो नहीं है, बट आगे है एंड लाइन M इज नॉट पैरेलल टू लाइन M। अब एक लाइन M भी है जो इसके पैरेलल नहीं है, तो ये हमने टेढ़ी खींची तो इसको हम सीधी लाइन खींच देते हैं। सपोज दिस इज एल लाइन, लाइन L M N, line L is not parallel line M and M is not parallel line N, okay। If a line L is not parallel to M and line M is not parallel to line N, does it follow that line L cannot be parallel to line N? Explain your answer by making a sketch. So डियर चिल्ड्रन, ये आपका स्केच हो गया कि ये L पैरेलल नहीं है M के और M पैरेलल नहीं है N के, बट लाइन L एंड लाइन N इज पैरेलल लाइन, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। तो आप यहाँ पे आप स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, लाइन L इज नॉट पैरेलल लाइन M and line M is not parallel line N, but line L is parallel line L। ये आपको 3 स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज line L is not parallel line M, second statement is line M is not parallel line N, and third statement is but line L is parallel लाइन N, ओके। सो डियर चिल्ड्रन, ये आपका स्केच भी है और हमने स्टेटमेंट भी बताया, एंड दैट्स ऑल। दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, ओनली 4 क्वेश्चंस आर हियर, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।